कौन सी से? थोड़ा जाके ले लें। गुलाम इनकी ड्यूटी है वो केवल बैग के साथ चित्र में सब Respected Chief Guest, Sir, Honorable Governor of Haryana, Shri Bandaru Dattatoyee ji, our most valued National Chairperson, Special Olympics Bharat, Dr. Malika Nadda ji, esteemed President Haryana State BJP, Shri O.P. Dhankar ji, our most cherished Director General Health Services Haryana, Dr. Veena Singh ji, श्रीमती लतिका शर्मा मैम, ex-MLA Kalka, Honorable Deputy Commissioner Shri Nishant Kumar Yadav, IAS, Senior Officers of District Administration and Health Department, respected Chancellor Sir, SGT University, Padam Shri Ram Bahadur Rai ji, members of faculty, distinguished dignitaries, Dr. Anju Bajpayee, President Special Olympics Bharat, Mr. Neel Yadav, Special Olympics Bharat Haryana, volunteers from health and NGOs, dear athletes, guardians, guests, friends, ladies and gentlemen. Let me extend a cheerful and vibrant welcome to one and all. It's my honor and privilege to welcome you all to the National Health Fest organized by Special Olympics Bharat on occasion of 75 years of Azadi Ka Amrit Utsav celebrations here in Gurugram. For an auspicious beginning, let's pray to Almighty for His never-ending grace and blessings to keep us safe and healthy. I request our Honorable Chief Guest, Sir, Dr. Malika Nadda Ma'am, and all the distinguished dignitaries present here to step forward for traditional lamp lighting. Guest of honors, Dr. Veena Singh, DGHS, Padam Shri Shri Ram Bahadur Rai, Chancellor, SGT University, Shri O.P. Dhankar, President, Haryana State BJP, Madam Latika Sharma, ex-MLA Kalka. Presenting the Saraswati Vandana on this occasion are students from SGT University. ऊपर के लिए शरण
हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। खुशियों ने समझी खुशियों ने समझी खुशियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार देवा, इशार देवा, इशार देवा, इशार देवा, इशार देवा। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। ज्ञानता से हमें प्यार दे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। Auspicious start of the event. It is a tremendous honor for me to be speaking to you all today, and it is tremendously important that we speak. This is about life, about hope, about the actions we take to make a difference for our future, for your future. It is about the story of people who help change lives and people who help save lives. It is about remembering and not forgetting mothers and fathers, sons and daughters who have dedicated their lives to help someone. We have a chance to make this difference, and I welcome you here to join us in making this difference for making health आपका होगा साइड में निकल and पीछे निकल जाइए यहाँ कोई नहीं without बात नहीं need for special पीछे चले His वहाँ से Excellency Governor of खड़ो। Haryana, Shri Ballarji यहाँ से नहीं Every यहाँ से child चले is a जाओ special gift from God who should be nurtured with love, care and affection within the family and society, and they should not be exploited in any way. There is a need to pay more attention to health, education and nutrition of this future generation of our country. We are grateful to you, sir, for your invaluable presence and gracious thoughts for special champions. I now invite Dr. Anju Bajpayee, President Special Olympics Bharat Haryana State, onto the dais for a formal welcome of our distinguished guest present here. बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं ऐसे डिग्नेरीज का स्वागत करूं जो इन बच्चों के लिए फील करते हैं। मैं बहुत आभारी हूं और अभिनंदन करती हूं महामहिम गवर्नर
हरियाणा का, जिन्होंने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, सोचा कि इन बच्चों के लिए मुझे वहां जाना है। सर, मैं इन बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से, स्पेशल ओलंपिक भारत हरियाणा की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने समय निकाला हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और इसका एक हिस्सा बनने के लिए। मेरा स्पेशल थैंक्स मैडम नड्डा जी को। मैडम मल्लिका नड्डा, अगर आपकी ये सोच नहीं होती तो शायद ये जो हम देख रहे हैं आज का आयोजन, ये नहीं हो पाता। मुझे याद आ रहा है जब हमने एक छोटी सी शुरुआत 95 में यमुनानगर से की थी, तो लोग हमें किराए पे मकान भी नहीं देते थे इन बच्चों के लिए काम करने के लिए। और आज आपके प्रयास से इस महाकुंभ में पॉलिटिकल लोग, सोशल इंटरेस्ट के लोग, हेल्थ के लोग, प्रशासन के लोग, इन सब का एक जगह इकट्ठा होना बहुत जरूरी था। हम इसका इंतजार वर्षों से कर रहे थे कि सभी कंसोलिडेट हो, ये सोच कंसोलिडेट हो। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपकी इस सोच के लिए और इस महान इनिशिएटिव के लिए जो आपने लिया। मैं स्वागत करती हूँ ओपी धनखड़ जी का। आप प्रेसिडेंट हैं प्रदेश बीजेपी के। फिर मैं कहूंगी कि किसी भी माध्यम से आप यहाँ तक पहुंचे। मैडम ने इस सोच को पॉलिटिकल लोगों को भी इसके साथ जोड़ा, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मैं धनखड़ साहब आपका भी स्वागत करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में ये बच्चे कभी भी अपने आप को अनाथ या इस तरह से महसूस नहीं करेंगे कि हमें कोई केयर करने वाला नहीं है। वी हैव समवन जो हमारी केयर कर सकता है। अब सभी सोच जुड़ रही हैं। लतिका जी का बहुत रोल रहा है इस पूरे आयोजन में, क्योंकि जब भी वीरेंद्र एंड सुनैना हमारे पास आते थे कि इस तरह का आयोजन करना है, ऑफ कोर्स मैडम का ब्रेन चाइल्ड था, मल्लिका मैडम का ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन उसको कार्य रूप देने में आपके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट के बिना शायद ये आयोजन संभव नहीं होता। मैं डीजी हेल्थ डॉक्टर वीना सिंह का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करती हूँ और जिस आंगन में हम ये कर रहे हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं जरूर पद्मश्री चांसलर साहब का भी अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमें इस प्लेस दिया जिससे हम इन बच्चों को आप सबके प्रस्तुत कर सकें, उनकी एबिलिटीज को आपको दिखा सकें कि वो कितने एबल हैं। और जितने भी लोग इस पूरे आयोजन से जुड़े रहे, हो सकता है मेरे पास नाम की लिस्ट नहीं आई हो उस तरह से, जितने भी लोग इस आयोजन से जुड़े रहे हैं, मैं उन सब का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और यहाँ डीसी महोदय भी हैं गुड़गांव के, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सॉरी अगर कुछ छूट गया हो, लेकिन मैं इन बच्चों की तरफ से और उनके अभिभावकों की तरफ से, स्पेशल ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत हरियाणा की तरफ से आपका सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस विश्वास के साथ कि हम ऐसे ही मिलके आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम सोच लेंगे कि हमें कंसोलिडेट करने अपने एफर्ट्स और इन बच्चों के साथ एक नए देश का निर्माण करना है। मैडम, जाते जाते आपके लिए जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी सुबह। नाप लेंगे अब तो समुद्र की गहराई भी और छू लेंगे आकाश भी। नाप लेंगे अब तो समुद्र की गहराई भी और छू लेंगे आकाश भी। अब हम भी लिखेंगे नई भारत, भारत के नव निर्माण की। अब हम भी लिखेंगे नई भारत, भारत के नव निर्माण की। मिलकर रहेंगे अब तो हमें, मिलकर रहेंगे अब तो हमें, हमारे हिस्से की जमीन भी और आसमान भी, हमारे हिस्से की जमीन भी और आसमान भी। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Anju Bajpayee. The driving force of the entire health department Haryana, the charismatic leader, the outstanding achiever, and an excellent clinician who not only represents the strength and support to all the women employees, but is also very inspiring and energizing role model to the entire health department. Our guest of honor today, Dr. Veena Singh, Director General Health Services Haryana, is like the scented flame of alabaster lamp, filling the organization with light of benign influence and warmth
of her charming cordiality. Amidst your thunderous applause, I now invite Dr. Veena Singh ma'am onto the dais for sharing her thoughts on this special occasion. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, महामहिम हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, राष्ट्रीय अध्यक्षा विशेष ओलंपिक भारत डॉक्टर मल्लिका नड्डा, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी हरियाणा श्री ओपी धनखड़ जी, मैडम लतिका जी, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम श्री निशांत यादव जी, चांसलर एचईटी यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रिय एथलीट और उनके अभिभावक, अतिथि मित्र, देवियों और सज्जनों, विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव के अवसर पर यहाँ गुरुग्राम में दिव्यांग जन के साथ आजादी महोत्सव के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाना हम सबके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पूरे कैबिनेट मंत्रियों ने हरियाणा में के 22 जिलों में 7,000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए इस अवसर को विशेष बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। हमें इस अविश्वसनीय चीज का हिस्सा बनने में बहुत गर्व है। एसओपी एक अविश्वसनीय आंदोलन है और अधिक विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और मैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा मैम जी को हार्दिक कृतज्ञता और बधाई व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने न केवल एक कठिन जीवन में विशेष लोगों की कठिनाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, बल्कि जीवन बदलने और विशेष लोगों को पहचानने, स्वीकार करने और सम्मान करने के लिए पूरे देश को एकजुट किया है। वे कई विशेष एथलीटों के हाथ पकड़ने वाली एक फरिश्ता है, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और ठोस प्रयासों से उज्जवल भविष्य के साथ सशक्त बनाया है। असफलता और भेदभाव के अंधेरे में प्यार और देखभाल की मशाल थामी श्रीमती नड्डा ने विशेष लोगों को उनके उचित अधिकार देने के लिए लड़ाई का नेतृत्व किया है। यह आंदोलन शहरों से लेकर गांव तक फैल गया है और देश को न केवल महामारी की नींद से जगाने के लिए बल्कि हर एथलीट को उनकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का उपयोग करके प्रोत्साहित करने के लिए एक द्वारा किए गए विशाल कार्य के लिए उन्हें मैं साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में मेरे विभाग ने पर्याप्त नहीं किया, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लेकिन आज के बाद हम चिकित्सा सहायता, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं को उन्नत करके विशेष रूप से विशेष व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने का वचन देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ और समृद्ध अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्रयास प्रत्येक जिला अस्पताल के लिए समर्पित नोडल अधिकारी होंगे और हर महीने एक दिन
दिव्यांगजनों और उनके माता पिता की समग्र देखभाल और परामर्श के लिए समर्पित होगा। आइए हाथ मिलाएं और सक्षम एथलीटों के साथ चलने और उनकी क्षमता को पहचानने और स्वास्थ्य को समावेशी और सुलभ बनाने का संकल्प लें। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक यह कोशिश एक दिन जरूर लंघ लाएगी। धन्यवाद। जय खूबसूरत विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रीना मैम। चंद पंक्तियां मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगी। मंजिल परिंदों को ये मिलेगी मंजिल परिंदों को ये उनके पर बोलते हैं। खामोश जो रहते हैं अक्सर उनके हुनर बोलते हैं। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि माननीय चांसलर महोदय एसजीटी यूनिवर्सिटी हमारे बीच विराजमान है। पद्मश्री राम बहादुर राय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए, राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी तथा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजे गए हैं। इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाई। हिंदुस्तान समाचार, नवभारत टाइम्स जैसे उच्च स्तरीय अखबारों में संपादक का दायित्व निभाया। उन्होंने वर्तमान में हिंदुस्तान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी के समूह संपादक और सदस्य हैं। इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रहबरी के सवाल, मंजिल से ज्यादा सफर आदि अनेक पुस्तकें लिखी और अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया। अनेक पुरस्कारों से नवाजे गए। पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है जो 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया। अब मैं आपकी तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय पद्मश्री राम बहादुर राय को। मान्यवर राज्यपाल सम्माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, विशेष ओलंपिक भारत जो एक राष्ट्रीय खेल संघ है की अध्यक्षा माननीय डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, दशमेश चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष मधुप्रीत चावला जी, प्रबंध न्यासी मनमोहन सिंह चावला जी, कुलपति डॉक्टर ओपी कांगा जी और वीना सिंह जी, लतिका शर्मा जी और अन्य महानुभाव जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको मैं नमस्कार करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। और मित्रों, ये गुरु गोविंद सिंह ट्राइब सेंटनरी विश्वविद्यालय के लिए मैं समझता हूँ कि और इस क्षेत्र के लिए भी, हरियाणा के लिए भी ये एक यादगार अवसर है। और ये यादगार अवसर मेरी समझ से 3 कारणों से है। पहला कारण जो सबसे बड़ा है, जिसका वीना सिंह जी ने भी उल्लेख किया, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में हैं और भारत के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव का न केवल नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें नए नए आयाम जोड़ रहे हैं। उस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इसी दौर में भारत के को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। और मैं ये कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और हाल तक के प्रधानमंत्रियों में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर का उस समय आह्वान किया जब पूरी दुनिया संकट में थी। ये एक संकल्प जगाया उन्होंने। और तीसरी बात से पहले मैं ये भी कहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के बाद देश रुके नहीं, थके नहीं, तो उन्होंने अमृत काल की कल्पना की। यानी जब भारत अपना 75वां मना लेगा तो उसके बाद जो 25 साल बीते आगे आएंगे और भारत की आज़ादी का जब 100वां साल होगा तो उसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी। और इन दो कारणों के अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैं समझता हूँ, जिसको यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है अंग्रेजी में, रिटर्न टू प्ले इंक्लूसिव रेवोल्यूशन, तो मैं ये कहूँगा कि यह जो तीसरा कारण है वो और महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत को खेल के मैदान में और समावेशी क्रांति के रूप में एक आह्वान किया जा रहा है। मल्लिका जी उसका नेतृत्व कर रही है। ये जो खेल क्रांति का आह्वान है उसके मुख्य आयोजन के लिए, जो हरियाणा का मुख्य आयोजन है, उसके लिए आपने इस विश्वविद्यालय के परिसर को चुना, मैं आपका आभारी हूँ। राज्यपाल जी का और मल्लिका जी का और राज्य सरकार का, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि एसजीटी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और हमारा इस तरह के कार्यक्रमों में पहले से भी सहयोग होता रहा है। खेलकूद का जो क्षेत्र है उसमें हरियाणा का एक विशेष स्थान है और उसको मैं अंडरलाइन करूं तो मुझे लगता है कि आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो ज़्यादा ख्याल में आएगा। भारत ओलंपिक में भारत ने 24 पदक जीते, जिसमें से 1/3 पदक हरियाणा राज्य के खाते में। ये हरियाणा की विशेषता है। उसी तरह से 2018 के कॉमनवेल्थ में भारत ने 66 पदक जीते और हरियाणा के खाते में 22 पदक आए। एशियाड में भारत ने 61 पदक जीते और हरियाणा के खाते में 17 आए। तो आज जो युवा इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि उनके लिए एक आशा की नई किरण पैदा हो रही है। आप में पता नहीं सब लोगों ने गौर किया या नहीं किया, लेकिन मैंने इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया। जब दीप जलाया जा रहा था और महामहिम ने दीप जलाया और लोगों ने भी दीप जलाया, मल्लिका जी ने भी दीप जलाया, तो अचानक मल्लिका जी थोड़ा सा मुड़ी और उनकी नजर पीछे गई और 2
लोगों को चुना या 2 लोगों को बुलाया, एक युवा और एक युवती, उन्हें भी दीप जलाने के इस उत्सव में शामिल किया। ये जो आयोजन है वो दरअसल इसी तरह के प्रोत्साहन का एक बड़ा अवसर है और ये संदेश देने की कोशिश है कि जो कोई भी, जिसको भी खेल के मैदान में जरूरत है, तो हम ओलंपिक भारत उनके साथ हैं। और यह मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो यहाँ आयोजन हो रहा है ये कोई अकेला आयोजन नहीं है। मल्लिका जी की अध्यक्षता में आज और इसी क्षण, जो मेरी जानकारी है अगर सही है, तो 75 स्थानों पर और भारत के 75 स्थानों पर 75,000 ऐसे दिव्यांग युवा इकट्ठे हो रहे हैं और उनका वो समारोह हो रहा है। यानी भारत में एक समावेशी क्रांति की एक नई तरंग पैदा हो गई। और ये जो नई तरंग पैदा हो रही है वही आत्मनिर्भर भारत को सबल बनाएगा, सशक्त बनाएगा। बीना सिंह जी, आपने अपने भाषण में, मैं आपको बधाई देता हूँ। इसलिए बधाई देता हूँ क्योंकि सरकारी अफसर आमतौर पर क्षमा नहीं मांगते। सरकारी अफसर गलती कर देते हैं लेकिन दूसरे को ही हड़काते हैं। जिलाधिकारी यादव जी इस पर हंस रहे हैं। अच्छा, बीना सिंह जी ने एक चूक को स्वीकार किया। मैं इसके लिए इनके प्रति मेरा आदर का भाव बढ़ा है। और कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसको ईसाई धर्म में कन्फेशन कहते हैं। और अगर महात्मा गांधी का आप उदाहरण लें, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा इसलिए पढ़नी चाहिए आपको क्योंकि उसमें जहां जहां उनसे गलतियां हुई, बचपन से लेकर के और 1928 तक, उन्होंने अपनी गलतियां मानी। और गांधी जी को हम महात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियां मानी। बीना जी, हम आपको महात्मा नहीं कहेंगे, हम आपको महात्मा जैसा कहेंगे। और जब आपने ये कहा कि अब हम अपनी भूल सुधारेंगे, तो मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ ACT यूनिवर्सिटी आपका सहयोग, आपके सहयोग से दिव्यांगों के लिए एक यहाँ इस परिसर में स्कूल खोल सकती है राज्य के सहयोग से। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी की। अगर ज़्यादा समय लिया हो तो मैं मल्लिका जी से, राज्यपाल महोदय से थोड़ी क्षमा याचना के साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। For your motivating words and inspiring us to continue our journey with resilience and courage. समर्पण, सहयोग, साहस, संकल्प, सद्भावना. This is what describes Special Olympics Bharat and its national chairperson Dr. Mallika Nadda ma'am.
She is spearheading the biggest movement in the world for people with intellectual disabilities with utmost dedication and endless passion. With over 30 years of experience, she has been leading social activist for the cause of underprivileged, differently abled, and girl empowerment. Founder of Chetna, a civil society initiative to integrate and mainstream vulnerable community by skill enhancement. She is recipient of many prestigious awards: Rajiv Gandhi Manav Seva Puraskar, the Razio Award, Rotary Shreyas Award for exemplary social service. I now invite Dr. Malika Natta ma'am, the architect and initiator of National Youth भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित हमारे विशेष दिव्यांग खिलाड़ी, उनके अभिभावक, स्पेशल ओलंपिक्स हरियाणा के सभी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र जी, सुनैना जी और मेरे समक्ष उपस्थित महामहिम बंदारू दत्तात्रेय जी, गवर्नर हरियाणा ओपी धनखड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा लतिका शर्मा जी, राजीव रंजन जी, कला जी, वीना सिंह जी, मुकेश आहूजा जी, निशांत कुमार यादव जी, वीरेंद्र यादव जी और हमारे सबसे आदरणीय और पूजनीय पद्मश्री राम बहादुर राय जी, जिनके कारण आज हम यहाँ इस कार्यक्रम को करने में सफल हुए हैं। एसजेटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनमोहन सिंह चावला जी और इस सारे कार्यक्रम के कर्णधार सूरजपाल जी, जिन्होंने मुझे यहाँ विशेष आमंत्रित किया। नहीं तो आज मैं शायद दिल्ली के किसी कार्यक्रम में उपस्थित होती और यहाँ आप सबके बीच में आने का जो सुअवसर हरियाणा के हमारे स्पेशल ओलंपिक्स की टीम ने दिया है, उन सबको मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने एक ये विशेष आंदोलन को पूरे देश में चलाने का एक संकल्प लिया है और ये आंदोलन है हमारे देश के 75 शहरों में 75,000 से भी अधिक विशेष मंद बुद्धि से ग्रसित दिव्यांग जनों का हेल्थ स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप, जिसके माध्यम से हम कोरोना काल के 2 वर्ष के अंतराल के बाद इन विशेष खिलाड़ियों को, हमारे विशेष बच्चों को, हमारे दिव्यांग जनों को खेल के मैदान के साथ जोड़ सके, स्कूलों में उनकी वापसी हो सके और ये पुनः समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। इसके लिए आज हम अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि राम बहादुर राय जी ने कहा, आज 5 तारीख को इस कार्यक्रम की शुरुआत है और देश के 33 शहरों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन है, लेकिन 7 तारीख जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसमें शेष 110 शहरों में इस तरह के आयोजन के साथ हम आज 78,000 ऐसे विशेष खिलाड़ियों का जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको हम हेल्थ स्क्रीनिंग के माध्यम से, हेल्थ चेकअप के माध्यम से, जहां उनको आज हम घरों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हम इनको खेल के मैदान से जोड़ के स्पेशल ओलंपिक्स भारत का जो मकसद है कि आइए हम सब इन विशेष बच्चों को एक नई दिशा दे, एक नया प्लेटफॉर्म दे और इनकी क्षमताओं के आधार पे इनका विकास हो सके और ये भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। इनमें भी
काबिलियत है, इनमें भी टैलेंट है और इनके टैलेंट को आगे खेल के मैदान में बढ़ाते हुए हम इनको एक विशेष स्थान दे सके, इनको समाज में सम्मान मिल सके और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस प्रयास के साथ हमने इस आंदोलन की शुरुआत की है। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 170 देश इस तरह के खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से मानसिक अक्षमता से ग्रसित लोगों को खेलों के माध्यम से उनके पुनर्वास की एक कार्यक्रम को चलाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 12 लाख से भी अधिक ऐसे दिव्यांगजन हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और आज हमें खुशी है कि 78,000 ऐसे दिव्यांग बच्चों को हमने स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ रजिस्टर करके विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम हेल्थ स्क्रीनिंग का बनने की हमने एक अनोखी एक पहल की है, जिसमें ना ही हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा रहे हैं लेकिन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्पेशल ओलंपिक्स भारत को स्थान मिले। इसके लिए हमारे सारी देश भर की स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम जुड़ी हुई है और इस आंदोलन को सफल बनाने में आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्मरण करूंगी, उनका आभार करूंगी कि उन्होंने विकलांगता शब्द को बदल के दिव्यांगता में बदला है। दिव्यांग मतलब देवताओं के करीब, दिव्यांग मतलब दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और ऐसे दिव्यांगजनों की सेवा, ऐसे दिव्यांगजनों के लिए कार्य करना, ये ईश्वरीय कार्य को मान के हम सब समाज का प्रत्येक वर्ग आज इन दिव्यांगजनों के साथ खड़ा पा रहे हैं और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक सरकार के माध्यम से सहयोग देके इसको एक विशाल रूप दिया है। हमारे बीच में डायरेक्टर हेल्थ मीना जी बैठी हैं, उनके माध्यम से सभी जिलों में यहाँ 60,000 ऐसे दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के माध्यम से हम इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इन सभी विभागों के हमारे आदरणीय मंत्रियों का, जिन्होंने दिव्यांगों की सेवा को ईश्वरीय कार्य मान के इस कार्यक्रम को इस सफलता की ओर ले जाने में उनका सहयोग रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी इस मंच से देश के सभी प्रदेशों में जो आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग के माध्यम से इनको एक स्वास्थ्य दृष्टि से घर से बाहर निकाल के एक इनको सुविधा देने का जो हमारा मकसद था कि ये 2 साल के कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई वर्ग होगा तो हमारे ये दिव्यांग बच्चे होंगे, हमारे ये दिव्यांगजन होंगे, जिनको घर से ना तो बाहर निकाला गया और ना ही इनको किसी भी गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिला। लेकिन वही स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने वर्चुअल क्रिकेट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया और घर में बैठे हुए इन खिलाड़ियों को वर्चुअल क्रिकेट से जोड़ा, इनको वर्चुअल फुटबॉल से जोड़ा और ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ इनको हमने जोड़ा और इनको किसी न किसी कार्य में सम्मिलित करते हुए एक्टिव रखने का प्रयास किया। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ स्वास्थ्य विभाग का, जिन्होंने प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन देने के लिए भी दिव्यांगजनों को आगे रखा और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री जी की सोच की दृष्टि पर, जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से, खेल कुंभ के माध्यम से इनको इंक्लूसिव खेल कूद में जोड़ने का प्रयास किया है। और आज जहां खेल विभाग
खेलो इंडिया, साई के माध्यम से इन बच्चों को प्रोत्साहित करती है, जहां ये ना ही राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में ये भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाते हैं। और मैं हरियाणा की खेल भूमि को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने देश में एक मिसाल कायम किया है कि सामान्य खिलाड़ियों के तर्ज पे हमारे विशेष खिलाड़ियों को भी सम्मान दिया है, अवार्ड दिया है, और भीम अवार्ड के नाम से 5 लाख की राशि का अवार्ड देके हमारे इन दिव्यांग बच्चों को एक समानता की दृष्टि से देखा है। इनको सामान्य खिलाड़ियों के तर्ज पे एक समान प्लेटफॉर्म दिया है। इनको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जैसे राशियों से खेल के अवसर पे सम्मानित किया है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, खेल विभाग का, जिन्होंने हमारे दिव्यांग बच्चों को समानता की दृष्टि से देखते हुए इनको ना ही समान अवसर दिया है, लेकिन कैश अवार्ड्स के माध्यम से इनको एक समाज में सम्मान भी दिया है और इनको मुख्य धारा से जोड़ा है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं हमारे केंद्रीय खेल विभाग ने जहां 2015 से सारे दिव्यांग खिलाड़ी जो विश्व खेलों में मेडल लेके आते हैं, इनको गोल्ड मेडलिस्ट को 5 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 लाख की राशि देने का भी निर्णय लिया है। उससे हम इन खिलाड़ियों का ना ही मनोबल बल बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके माता पिता को भी एक बल मिल रहा है और समाज में जो इनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। और हम अपनी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया है। एक्सेसिबल भारत, सुगम्य भारत हो और एक्सेसिबिलिटी पे पूरे देश में आज कार्य हो रहा है। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि सबको महसूस हो रहा है कि शायद हमने इस वर्ग के लिए कुछ कम कार्य किया है, लेकिन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने सुगम्य भारत, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सब के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों को भी एक सामान्य दृष्टि से देखा है, इनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और आज ये सब समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का एक विशेष प्रयास और प्रयत्न है। मैं आप सबका यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर साहब, सीएमओ सर यहाँ बैठे हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आज यहाँ 300 ऐसे विशेष बच्चे आए हैं जिनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और 7 तारीख को पूरे देश में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में 75,000 ऐसे दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। 750 स्पोर्ट्स सेंटर्स पूरे देश में इन विशेष बच्चों के लिए डेवलप हो, ये हमारा प्रयास होगा और हर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए एक्सेसिबल स्टेडियम हो विथ रेसिडेंशियल फैसिलिटी। ये हमारा निवेदन प्रत्येक प्रदेश की सरकार से रहेगा कि इन दिव्यांग जनों को हम खेल के मैदान में मौका दें, प्रोत्साहित करें। और आप सबको याद रहे, स्पेशल ओलंपिक्स सिर्फ मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों की खेल कूद की प्रतियोगिता है। पैरा ओलंपिक्स शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों की खेल कूद प्रतियोगिता है। वैसे ही जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी ओलंपिक्स अलग है और जो सुन नहीं सकते उनकी डेफ ओलंपिक्स अलग है। ऐसे 4 प्रकार के ओलंपिक्स की प्रतियोगिताएं पूरे विश्व में होती हैं, जिसके माध्यम से हम इस तरह के अलग अलग दिव्यांगता से ग्रसित लोगों को एक अवसर देते हैं, इनको इनके टैलेंट को पहचानते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पैरा ओलंपिक्स में और ओलंपिक्स में भारत को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों का मैं इस मंच से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब मिलके ऐसे
दिव्यांग लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इनको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए हम सब कार्य करेंगे। और अंतिम में मैं नानाजी देशमुख की 2 पंक्तियां आपके सामने कहना चाहती हूँ कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं, और अपने वे हैं जो शोषित है, पीड़ित है और असहाय है। तो आइए हम सब मिलके उन अपनों के लिए कार्य करें जिनको हमारी आवश्यकता है और जिनके लिए हम अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। तो आप सबका स्पेशल ओलंपिक्स के भारत के इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में हृदय से स्वागत है और आभार है। जय भारत। Thank you for inviting us with Special Olympics Bharat movement and making us all a part of this unique venture. ये 2 पंक्तियां आपके लिए मैम। तू शाहीन है, तू शाहीन है परवास काम तेरा, तू शाहीन है परवास काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है, तेरे सामने आसमान और भी है। Respected President of Haryana State BJP, Shri Gopi Dhankar ji, is amongst us on this special occasion of National Health Festival. He is a dynamic leader and outstanding social activist. He has taken several unique initiatives and has availed every opportunity to accomplish great feats. Let's hear from him how he achieves the unimaginable and incredible social movements. I welcome you, sir, on the dais. Shri Gopi Dhankar. बहुत ही आदर के योग्य महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, अभी जिनका उद्बोधन हमने सुना, और हम